लोगों को फिर से एक जीने का मौका दे सकती है। फ्यू थिंग्स कि एक ब्रेन डेड डोनर के जो ऑर्गन्स हैं वो आज 8 लाइफ सेव कर सकते हैं, अप टिल 8 जिंदगियों को बचा सकते हैं। तो लेट्स जस्ट क्विकली सी अ प्रीव्यू ऑफ द शो। For the past 5 years, perhaps he's our brand ambassador. हेलो फ्रेंड्स, डीडीएस न्यूज में आपका स्वागत है। अंगदान महादान है, लेकिन एक बहुत बड़े तबके में इसे लेकर उचित जानकारी का अभाव है। आंकड़ों के अनुसार देश में अंगदान की दर बीते कुछ वर्षों में 0.5 प्रति मिलियन से बढ़ के 0.8 प्रति मिलियन हुई है। अभी इस दिशा में बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इसी ध्यान को रखते हुए सनर इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने अपने परिसर में अंगदान पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर डॉक्टर अंकुर गर्ग, एचओडी सीनियर कंसल्टेंट एचपीबी सर्जरी एंड लिवर ट्रांसप्लांट, डॉक्टर सुमित शर्मा, यूरोरोबोटिक्स ने अंगदान को लेकर विविध जानकारियां साझा की। डॉक्टर सुमित शर्मा ने कहा कि अंगदान करने से ज्यादा सही और क्या हो सकता है। अंगदान करके न केवल आप किसी एक व्यक्ति की जिंदगी बचाते हैं, बल्कि उन लोगों को भी आप अनमोल तोहफा देते हैं जिनकी जिंदगी उस व्यक्ति से जुड़ी है या उसी व्यक्ति पर निर्भर है। अपनी मर्जी और उचित जानकारी, डॉक्टर की सलाह के साथ किया गया अंगदान बिल्कुल सही है। जीवित रहते अंगदान से भविष्य में किसी समस्या को लेकर डॉक्टर अंकुर गर्ग ने कहा कि इससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्जरी के कुछ दिनों तक कुछ परहेज जरूर बताए जा सकते हैं, लेकिन लंबे समय में इसकी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। एक किडनी दान करने के बाद दूसरी एक किडनी के साथ सामान्य जीवन जिया जा सकता है। साथ ही लीवर की बात करें तो इस प्रक्रिया में डोनर के लीवर का एक टुकड़ा या हिस्सा लिया जाता है और मरीज में प्रत्यारोपित किया जाता है। Experience also dealing with kidney transplants and how he has helped numerous patients in so many years where people have come forward to donate their organs after brain death. Hi everyone. So I'm Dr. Sumit. I'm the director of Department of Urology and Kidney Transplant. Prior to this organization, for some time I've worked in an institute called Institute of Kidney Disease and Research Center, which is based out of Gujarat. It is one of the centers that does maximum number of single center organ transplant. They were engaged in doing kidney, liver as well as pancreas transplant, and I have been very proudly associated with that institute for 4 years. The concept of donation, whether it is organ or your own belongings, for example money for that matter, for some reason it is more prevalent in south, west, but it is not as prevalent in northern India. We often think that अगर मैं कुछ देता हूँ तो इसमें मेरा फायदा क्या है, which is a very wrong notion. See, it has to be a selfless donation. At least in Gujarat, we were doing more than 60 kidney transplants, which are from brain dead donors. Now, to understand the concept of brain dead donors, there is very less initiative by the government or any organization in order to create an awareness about the concept of brain death. And if somebody wants to donate the organ falling dead, what one has to do? So to share with you very simply the level of ignorance that exists in the society is, in one of these days I read a news column in which a kid who was very much aware and sensitized about the concept of organ donation, the kid committed suicide in his house. It is my last wish that please donate my organs to somebody who is needed. Now the tragedy of the situation is, none of these organs of the kid who has died can be used, though it was his last wish. Only tissue can be used, maybe cornea, eye, and that's it. So to understand how anybody who wants to donate, for example, I want to donate my organ following my death. If the death happens in the house, I cannot donate my organs. It has to be an institutional death. And what is the institutional death? What are the criteria for that? Where do we get maximum number of brain dead donors? These are the patients who are sick and they are in ICU, either because of road traffic accident in which the brain has suffered a irreversible injury, or the person has suffered some sort of stroke, maybe breathing, BP was low, something, and on medicines, on ventilator, we have kept the patient heart beating, but the brain is gone, brain is already gone. So to say that
the brain has undergone an irreversible damage, though the heart is beating at that time. So the notion among the people is, even if the IV fluid is going, the person is alive. So we have to make those people aware that the person, though the heart is beating, though the person is breathing on a ventilator, the brain is gone and the brain has suffered an irreversible damage. The moment we take this person off the ventilator, off the medicine which are being used to maintain his blood pressure, the breathing will stop, the heart will stop, and the person will die there and then. That is how we define death. We do a ECG and we see that there is no activity and now the person is dead. But the concept of brain death, the awareness of it is not very rampant in the society. It requires a lot of awareness initiative from the government, maybe from influencers, from religious leaders, who have to make this concept more rampant, more understandable to general public. Now, I have told you that a person, now this boy for example, who wanted to donate his organ could not donate his organ because the death was not institutional, it was at home, the person died, the respiration stopped, all the organs get damaged. We get a very limited window in willful organ donation. In many countries, living organ donation, it is almost outdated. Me and Uncle, we were just discussing for liver, for example. You are putting a loved one, a family member, you are cutting open his body, taking half of the liver, whatever one may say, there is some amount of risk involved to the donor. But in India, because of family bonds, ties are very strong, still people come forward voluntarily. For example, for Mr. Jaiswal, his wife voluntarily came forward and gave one of her kidneys. In many countries, the concept of living donation almost is outdated. Most of the organs are procured from these brain dead donors or diseased donors. So that is what the idea of the gathering is, to create an awareness regarding this concept. How if someone wants voluntarily for his organs to be donated after death, it is important to communicate to the family, maybe sign a card, carry that card, and create awareness in the society regarding this concept. Yeah, and this educational standpoint भी पता चले और ये भी पता चले कि जो जिन फैमिलीज को डोनेशंस मिलती हैं तो उनके लिए कितनी बड़ी बात होती है और कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है. आई थिंक डॉक्टर अंकुर है समवेयर इवन इन द पॉडकास्ट मेंशन्ड ब्लॉग आता हूँ 2013 से 2016 तक मेरी डायलिसिस 2.5-3 साल हुई और इस दौरान मेरे को 2 से 3 अटैक भी पड़े और एक अटैक मेरे को ऐसा पड़ा जो कि घर वालों ने कह दिया कि इस डेड, इसमें कुछ नहीं है, इसको बाहर ले आओ. मेरे को बाहर, जैसे एक डेड बॉडी को बाहर ले आते हैं, बाहर ले आए. बाहर लाने के बाद जैसे घर में रुआ पीटी और उस तरीके का माहौल था. तो मैं जहाँ रहता हूँ वो एक डॉक्टर्स का हब है. वहाँ सर्जन भी है, वहाँ फिजिशियन भी है, वहाँ ऑर्थोपेडिक भी है, कई डॉक्टर्स के क्लिनिक हैं, कई हॉस्पिटल भी हैं. एक डॉक्टर तरुण सिंगल है, फिजिशियन है, और उनके हॉस्पिटल में डायलिसिस का भी मैं उन्हीं के यहाँ डायलिसिस कराता था. तो मेरी मैसेज नहीं मानी कि एक बार ले चलो इन्हें हॉस्पिटल, ले चलो, सामने ही है. तो मेरे को ले गए और मेरे को 8 या 9 घंटे बाद पता नहीं ऊपर वाले ने कहाँ से मुझे फिर मेहर दी थी और मैं दोबारा से फिर अपना. उसके बाद 2016 के बाद 1 साल मेरी और डायलिसिस हुई. 2017 में मैं डॉक्टर सुमित शर्मा सर से मिला. मैंने कहा सर मेरे को अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराना है और सर ने मेरे को गाइड किया. थोड़ा उनके पच्चनों पे चला और KM साहू सर और थे मेरे, उन्होंने मेरे को गाइड किया. मैं उन्हीं हिसाब से चलता रहा. फिर धीरे धीरे मेरा 2018 11 जुलाई को मेरा ऑपरेशन हुआ. उसके बाद जैसे जैसे सर बोलते हैं कि आपको इस तरीके से रहना, इस तरीके से रहना, ये मेडिसिन चलनी है, टाइम टाइम पे आप मेरे को दिखाने आइए, इस तरीके से मेरा ये जीवन सब 4-5 साल में मैं आज आपके साथ बैठा हूँ. थैंक यू सर. एंड मैम आप बताना चाहेंगे अपनी जर्नी, क्योंकि आपने डोनेट किया है राइट, तो आप बताना चाहेंगे हाउ इज लाइफ आफ्टर दैट. आई एम फाइन. जब से मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी तक और बिल्कुल स्वस्थ हूँ. मैं तो मैंने तो आज तक एक ट्रांसप्लांट के बाद केवल 1 हफ्ते टैबलेट खाई, उसके बाद मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई नहीं.
तो क्या आपको अब डायलिसिस कराना नहीं पड़ता? नहीं। अच्छा, 10 जुलाई 11 जुलाई 2018 से तो नहीं। अभी कोई प्रॉब्लम आपको होती कैसी है भी? या पूरी तरह से स्वस्थ है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ, आपके सामने हूँ। अच्छा मैम, आपको कोई समस्या आ रही है या आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं आप? अभी फिलहाल तो पूरी तरह से स्वस्थ देखिए साहब, पिछले तो- 2013 से जायसवाल जी, एक सवाल आपसे है कि Yes. आप दिल्ली में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, एम्स है, राम मनोहर लोहिया है, तो आपने यही हॉस्पिटल क्यों चुना? मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ जी। और मेरे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर तरुण सिंघल, मेरे फैमिली टर्म से मेरे बड़े भाई हैं। तो उन्होंने कहा कि एक नया हॉस्पिटल खुला है मथुरा के अंदर, नियति। तो तू एक बार, तू खुद ड्राइव करता है गाड़ी, तू इतना सिंसियर है, खुद दिखा सकता है, तेरे बच्चे भी इस लायक नहीं है कि तेरे संग आ जा सकें, तो तू खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके तू आसपास सुबह जाओगे और शाम को लौटाओगे। तो हम पहली बार जब हम आ गए तो जाने के बाद हमने देखा कि हमारा करीब 50 से 60 किलोमीटर का रनिंग था। इतना हम दोनों मियाँ बीवी कभी घूमने भी निकल जाया करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम जब आने लग गए, तबीयत जब खराब होती है ना सर किसी को, तो जैसे कहते हैं कि तिनका, उस डूबते को तिनके का सारा काफ़ी है। तो हमारे पास कोई ऐसा नहीं था कि हम किसी को साथ लेके आए। भाई कोई आदमी एक दिन आ जाएगा सर, 2 दिन आ जाएगा, लेकिन हमको 3 साल का जो हमें टाइम पीरियड था, हमें देखा कि हमें आगे कौन हमारा साथ देगा। बच्चे कोई गाड़ी चलाना उस समय जानते नहीं थे, छोटे थे, उनका पढ़ाई का भी था, तो हम दोनों ही चले आते थे। हमको तीसरे से मतलब नहीं था कि कोई हमारा भाई है, कि कोई हमारा चाचा का बेटा है, फलाना है, ये है। आ जाते थे। आने के बाद अपना, इसीलिए हमने उसको, नियति को हमने दिल्ली में कहाँ पड़े मिलेंगे, कौन के घर में रहेंगे, ये कोई परेशानी ऐसी तो है नहीं है, कौन हमें ले जाएगा, कौन हमें लाएगा, ठीक है ना, ठीक है। हम दूसरा, मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। ऐसा भी नहीं हूँ कि पानी, पैसे को पानी की तरह बहाता। जिस समय सर मेरा ऑपरेशन हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट का, उससे पहले मेरे को ये बताया गया था कि आपके अंदर और भी कमियां हैं, पहले उनका ऑपरेशन कराइएगा, तब जाके ट्रांसप्लांट का नंबर आएगा। और मेरे को 2 साल लग गए थे ट्रांसप्लांट में आने तक। मेरा बीटिंग हार्ट सर्जरी भी हुई है। मैं नहीं जानता बीटिंग हार्ट सर्जरी क्या कहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला कि ओपन हार्ट से भी बड़ी होती है ये बीटिंग हार्ट सर्जरी। Now to clarify possibly what you want to ask is कि इन्होंने ये वाला हॉस्पिटल क्यों चुना? See, he is associated with me for the past 4-5 years. जब जायसवाल जी का ट्रांसप्लांट हुआ तब मैं उस हॉस्पिटल में था जिसकी ये बात कर रहे हैं. So currently I am associated with this hospital, and to give you an overview, because in this hospital we do predominantly international transplants. So to give you an overview as to how does a transplant patient feel, how does a donor feel, and the person should be able to express in a language which is very comprehensible to all of you, to give the importance of this thing, organ donation. That is why we have called this family. And otherwise, Jaiswal ji is very social, has been associated with us.